Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing great, and in this video we are going to discuss about the NORCET PYQ. So today is the class 8 day 8 of our NORCET PYQ series. So start करते हैं with the first questions, that is a patient is taking isoniazid for the treatment of active tuberculosis, right? So for the treatment of active tuberculosis, a patient is taking isoniazid, okay, and nurse know that its side effects of peripheral neuritis, right? And instruct the patient for taking which drugs, which additional drugs. Very easy questions, and I know, I believe, from you all people, this questions answer. So instruct the patient for taking a vitamin B6 or pyridoxine, vitamin B 12 or cobalamin, or vitamins B1 thiamine, or vitamin A, that is retinol. So you know very well that is isoniazid. So isoniazid will leads to peripheral neuritis or peripheral neuropathy, both are same है ना. So peripheral neuropathy, why? Because basically जो isoniazid है ना, that interfere with the metabolism of vitamin B6, and because of the deficiency of vitamin B6, patient will complain about the peripheral neuropathy, right? So because of that, if the patient is taking isoniazid, we have to give the prophylactically, we have to give this vitamin B6 or pyridoxine. So very simple questions, that is we have to give vitamin B6 or pyridoxine with isoniazid tablet. Very important, ठीक है. Very simple questions are. Moving to the next questions, that is a patient is going to operation theater for abdominal surgery and the nurse administers injections atropine sulfate, right? Okay. The patient's attendant asks why this injection is given just before the procedure. The nurse explains that it enhances the effects of anesthetics medicine. B, it reduces the secretion of gastrointestinal secretion. C, it will prevent the anesthetics drug induced tachycardia. And D, it will reduce the patient's anxiety. See, very simple and very important questions. If the patient is going for surgery, so as a pre-anesthesia, we have to give certain drugs, and in that we are going to give this atropine. So हम atropine देते हैं patient को, very important. atropine देते हैं या फिर glycopyrrolate भी देते हैं, ठीक है ना. So basically हमारा जो मेन इंडिकेशन होता है फॉर गिविंग दिस एट्रोपिन, दैट इज एट्रोपिन क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, एंटी कोलिनर्जिक और एंटी मस्करिनिक ड्रग है. सो बेसिकली ये क्या करेगा, जीआईटी, रेस्पिरेटरी, है ना, यहाँ के जो सिक्रीशंस है ना इसके डिक्रीज करेगा. सो इट डिक्रीज द सिक्रीशन फ्रॉम द जीआईटी एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग सिक्रीशंस पेशेंट को जो एस्पिरेशन हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, उससे क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा. So first very important action of this atropine as a pre-anesthesia drugs. Second action और क्या है कि during surgery क्या होता है कि हम manipulate करते हैं या फिर giving anesthetics drug can leads to bradycardia, है ना. Why? Because of the vagal stimulation it can leads to bradycardia. So atropine क्या है, anticholinergic है, तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो ये दो इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है फॉर गिविंग एन एट्रोपिन एज अ प्री सर्जरी, है ना. सो इन्होंने बोला है कि द नर्स एक्सप्लेन्स दैट इट एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक्स मेडिसिन. नो, सो एट्रोपिन का ऐसा कोई काम नहीं है कि वो एनेस्थेटिक्स मेडिसिन के इफेक्ट्स को इनहेंस करेगा. सो ए इज रॉन्ग. पी है, इट रिड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन. सो यस, इट इज करेक्ट. सी पढ़ते हैं, इट विल प्रिवेंट द एनेस्थेटिक्स ड्रग इंड्यूस्ड ट्रैकिकार्डिया, नॉट इट्स ब्रेडिकार्डिया. If it is bradycardia, then answer हो सकता था कि it will prevent the anesthetics drug induced bradycardia. So it is again wrong. And D है, it will reduce the patient's anxiety. No. So for reducing the patient's anxiety, हम पेशेंट को लाइक मिडाजोलव और एल्प्रेक्स एंड ऑल देते हैं, बट एट्रोपिन का ऐसा कोई एक्शन नहीं है कि पेशेंट्स की एंजाइटी को वो डिक्रीज करेगा. सो डी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमारा है बी, इट रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन. Understood? Okay. Moving to the next questions, that is what is the most common serious side effects of the drug chloramphenicol, especially in neonates.
सो वेदर इट इज ब्रॉन्ज, इट्स ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम और ग्रे बेबी सिंड्रोम. C is the red baby syndrome and D is the carbon baby syndrome. C. So this is the chloramphenicol, very important drug, that is antibiotic. So basically, if the chloramphenicol is given to especially the neonates, the preterm neonates, it can leads to gray baby syndrome. Why? बिकॉज जो बेबी का जो लीवर होता है वो क्या होता है, इमेच्योर होते हैं, तो एंजाइम्स भी क्या होंगे, इमेच्योर होंगे. प्लस बेबी का किडनी भी क्या होता है, इतना ज्यादा फंक्शनिंग नहीं होता है, तो प्रॉपर रीनल एक्सक्रीशन भी नहीं होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट बेबी का स्किन कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का होगा, बेबी को पुअर फीडिंग होगा, वॉमिटिंग होगा, है ना. सो इट कैन लीड्स टू ग्रे बेबी सिंड्रोम. वो है कौन, दैट इज क्लोराम्फेनिकोल. ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम कब मिलता है, व्हेन बेबी को जॉन्डिस होता है, तो हम क्या देते हैं, वी आर गिविंग फोटोथेरेपी. सो द साइड इफेक्ट ऑफ फोटोथेरेपी क्या है, दैट इज द ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम. सो ए इज द इनकरेक्ट वन. सी इज द रेड बेबी सिंड्रोम. सो रेड बेबी सिंड्रोम इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट इज vancomycin, है ना. So that's why we have to administer vancomycin very slowly because it can leads to red baby syndrome. Okay, and D तो होता नहीं ऐसा कुछ. So आंसर क्या है, that is B, that is gray baby syndrome. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड should be avoided in which condition? A, bacterial fever, B, viral fever, C, headache, and D is none above the above. So you know acetyl salicylic acid or aspirin. So aspirin is not given if the baby have any viral fever. Why viral fever, like chicken pox हो गया, है ना. Why? Because it can leads to Reye's syndrome. It can leads to a very serious life-threatening complications, that is Reye's syndrome. इसमें क्या होता है, बेसिकली there is like encephalopathy, है ना. So बेबी को encephalopathy होगा, because of that बेबी को सीजर्स आएंगे, है ना. सीजर हो सकता है, कोमा हो सकता है, ठीक है ना, पुअर फीडिंग, है ना, इरिटेशन, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा इन Reye's syndrome. एंड ये कब होता है, when you are giving aspirin to a baby who having viral fever, है ना. So this is something important. So acetyl salicylic acid should be avoided in which condition, that is the viral fever, because it can leads to Reye's syndrome. Simple questions था. Next question है, the drug of choice in anaphylactic reaction is atropine, epinephrine, digoxin or dobutamine. Very simple, that is epinephrine. So the drug of choice for anaphylactic reaction is epinephrine. एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन हम कितना देते हैं, दैट इज 0.3 to 0.5 mg. एंड इसका डाइल्यूशन क्या होता है, दैट इज 1/1000 के डाइल्यूशन में हम देते हैं 0.5 mg IM इंट्रामस्कुलर, ठीक है ना. सो दैट इज द एपिनेफ्रिन. सो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस. एट्रोपिन कब देते हैं, इन ब्रेडिकार्डिया. सो ब्रेडिकार्डिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा, एट्रोपिन हो जाएगा. डिजॉक्सिन बेसिकली हार्ट फेलियर में देते हैं. डोब्यूटामिन बेसिकली हम शॉक में देते हैं. सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इज एपिनेफ्रिन. वेरी सिंपल. सो आज का सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल एंड वन लाइनर टाइप के हैं, जो कि पहले नॉसेट में आते थे, है ना. लाइक अभी इतना इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कम आने लगे हैं, but yes, it can be asked, so that's why I put these questions also. Earlier like NOSET 1 2 3 4 तक इस तरीके के questions आते थे, but now the questions is like कि they mix up with the practical, है ना. so practically वो पूछते हैं with the help of giving some scenario based type, है ना. so इस तरीके का questions basically अब पूछते हैं, पहले से डायरेक्टली क्वेश्चंस आता था, ठीक है ना. सो विच एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन कॉज ऑरेंज रेड कलर यूरिन. वेरी सिंपल. So that is the rifampicin. R for rifampicin, R for orange red color urine, है ना. So first side effects क्या है, that is the orange red color urine. Even जितने भी secretions होते हैं वो कैसा हो जाता है, orange red color का हो जाता है. Plus it also leads to hepatotoxicity. So दो important side effects आपको याद रखना होगा rifampicin का, that is orange red color urine plus hepatotoxicity, ठीक है. isoniazid का अभी मैंने बताया, that is the peripheral neuropathy. एंड टू रिड्यूस दैट हम इसको क्या देते हैं पेशेंट को, दैट इज अलोंग विथ isoniazid वी हैव टू गिव दिस विटामिन B6 pyridoxine, ठीक है ना. pyrazinamide कैन लीड्स टू, दैट इज हिपैटोटॉक्सिसिटी भी है, ये हिपैटोटॉक्सिसिटी भी है, प्लस इसके साथ साथ ये हाइपर यूरिसीमिया भी करता है, हाइपर यूरिसीमिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन लीड टू गाउट,
ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, है ना। सो ये कौन सी क्लास का ड्रग है, दैट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सो इट कैन लीड्स टू ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, सो ये आपको इम्पोर्टेंट जो कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूनिक साइड इफेक्ट्स होते हैं ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राईहेक्सीफेनिडाइल एक्ट एज अ एंटीसाइकोटिक, एंटी पार्किंसोनिज्म और एंटीमेनिक और एंटी मलेरिया। वेरी सिंपल क्वेश्चंस देखो, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल इट इज आल्सो नोन एज पेसिटेन। सो बेसिकली जो ट्राईहेक्सीफेनिडाइल है ये क्या है, दैट इज एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। सो दिस ड्रग वी आर यूजिंग इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में बेसिकली हम ये यूज करते हैं, पार्किंसन का जो मोस्ट कॉमनली जो ड्रग है दैट इज सिंडोपा, तो हम यूज करते ही करते हैं, बट this drug can also be used, that is anticholinergic trihexyphenidyl। so basically ये जो ड्रग है ना, एक तो पार्किंसन वाले पेशेंट में यूज करते हैं, सेकंड अगर पेशेंट साइकोसिस का पेशेंट है एंड व्हेन ही इज टेकिंग एंटीसाइकोटिक ड्रग, सो यू नो वेरी वेल कि इफ द पेशेंट इज टेकिंग एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, so the side effects of antipsychotic drug is acute dystonia प्लस पार्किंसोनिज्म सिम्टम्स भी होते हैं लाइक रिजिडिटी, ट्रेमर एंड ऑल। सो टू रिड्यूस दिस साइड इफेक्ट्स हम पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिकली भी ये ट्राईहेक्सीफेनिडाइल देते हैं। सो दिस ट्राईहेक्सीफेनिडाइल का इंडिकेशन क्या है, एक तो पार्किंसन डिजीज एंड एक सेकंड क्या है, दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। सो इफ द पेशेंट इज टेकिंग एंटीसाइकोटिक्स ड्रग तो साइड इफेक्ट्स क्या होता है, दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारा क्या क्या होता है, एक्यूट डिस्टोनिया, एकैथीसिया, पार्किंसोनिज्म सिम्टम्स, है ना। सो टू रिड्यूस दिस एक्यूट डिस्टोनिया एंड पार्किंसोनिज्म वाले सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या देते हैं, दैट इज ट्राईहेक्सीफेनिडाइल। ठीक है ना। सो एंड इट इज नॉट अ एंटीसाइकोटिक ड्रग, नो नॉट एट ऑल, इट इज यूज्ड एज अ एंटी पार्किंसोनिज्म, यस इट इज यूज्ड एज एंटीमेनिक, नो। सो एंटीमेनिक में बेसिकली मूड स्टेबलाइजर्स देना होता है, सो इट इज नॉट द मूड स्टेबलाइजर्स, सो ये हमारा गलत है। एंटी ऑफ कोर्स एंटी मलेरियल भी नहीं है, सो आंसर क्या है, दैट इज एंटी पार्किंसोनिज्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सो आज का हमारा इतने क्वेश्चंस है, आई होप आपको ये बहुत इजी लगा होगा, बहुत सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस था। सो नेक्स्ट क्लास में यू मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स की कौन सा आपको पीवाईक्यू करना है, वेदर इट इज CHN, OBG और लाइक पीडियाट्रिक्स और रिसर्च, व्हाट लाइक विच PYQ you want, वो मैं स्टार्ट करूंगी। सो फटाफट कमेंट बॉक्स में कर देना so that I will start. Okay, so that's all about today, and one thing I want to say that is कि this type of questions basically पहले आते थे, अभी भी आते हैं बट बहुत कम आते हैं। मोस्टली कैसे आते हैं, that is scenario based, जो मैंने आपको पहले लाइक नॉर्सेट 1 to 7 तक जो मैंने प्रैक्टिस करवाया ना आपको, उस तरीके के MCQ अब ज्यादा आते हैं। So that's why I always insist you people कि please प्रैक्टिस व्हाट, दैट इज कि मॉसबी से भी MCQ जरूर करके जाओ, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ के जाते हो, आप क्या कंप्लेन करते हो कि मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ा, मैंने रिवीजन भी अच्छे से करा, एंड मैंने क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस किया है, दैट इज टारगेट हाई से प्रैक्टिस करके गई हूँ मैं। टारगेट हाई में तो होते हैं, मैं आई एक्सेप्ट दैट कि इन टारगेट हाई देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक 900, 1000 इवन 1000 MCQ भी होते हैं, बट देयर इज नो एनी बेनिफिट, बिकॉज हमें किस तरीके से चलना चाहिए, वी हैव टू गो विद द एग्जाम्स लाइक सिचुएशन। सो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज सिनेरियो, प्रैक्टिकल, प्रायोरिटी बेस्ड आता है। तो until and unless you will not practice this type of questions, how you assume कि during exam you will able to solve this type of questions? No, है ना। So that's why you have to practice this type of questions from now itself, very very important. So please मौसबी से आप टारगेट हाई से नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज टारगेट हाई का क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं है, इतना क्वालिटी बेस्ड नहीं है। सो अगर आपने PR यादव कर लिए हैं, आपने अगर मिशन ओल्ड पेपर कर लिए है, देन जस्ट ऐड मॉसबी ऑल्सो। सो मॉसबी से थोड़े से जितना हो सके आप 10, 15, 20 MCQ ऑफ ईच लाइक सब्जेक्ट्स एंड जो भी है वो कर लो, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि हाँ हमें इस तरीके से अप्रोच करना है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
सो आप इस पे ज्यादा फोकस करो अभी। और एंड ऑफ कोर्स इन द लास्ट टाइम आपको जो भी वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, प्लीज जस्ट फोकस ऑन दैट। अब इस टाइम पे आप कुछ नया कोर्स बिल्कुल भी मत लेना। जितना भी कोई आपको बोले नए नए कोर्स आए, आपको जितना भी लाइक एड एंड ऑल है, स्टिल यू हैव टू जस्ट बिलीव ऑन योर नोट्स, है ना। वट एवर द नोट्स, वट एवर द कोचिंग नोट्स या फिर बुक्स जो भी आपने कहीं से भी पढ़ा है, जस्ट बिलीव इन दैट, जस्ट फेथ ऑन दैट, एंड उसको ही बार बार अच्छे से रिविजन करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एंड ऑफ कोर्स यस, जो पीवाईटी टॉपिक है, दैट इज द प्रीवियस ईयर टॉपिक है, जो हाई टॉपिक है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको तो अच्छे से पढ़ के जाना है ना। सो जो आपका हाई टॉपिक है, जैसे कि सपोज एबीजी, एंड एबीजी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, एबीजी आपसे नहीं हो रहा है, सो एबीजी अच्छे से पढ़ो, उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है वो अच्छे से सॉल्व करके जाओ, है ना। इसको नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि एबीजी नहीं आ रहा तो एकदम एबीजी छोड़ ही दो, नो, एबीजी नहीं आ रहा तो उसको अच्छे से उससे रिलेटेड एमसीक्यू करो, उसको छोड़ के नहीं जाना, बिकॉज एबीजी से रिलेटेड एवरी टाइम एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो एबीजी छोड़ के जाना इज समथिंग की बेवकूफी है ना। सो एबीजी पढ़ के अच्छे से जाना है। सो दिस टाइप ऑफ सिंपल थिंग यू हैव टू रिमेम्बर वेरी वेरी वेल। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो ये बोलते हैं कि लाइक आई एम गेटिंग 60, 65, 70, 50 मार्क्स इन माई टेस्ट सीरीज, इन माई मॉक टेस्ट। सो मुझे क्या करना चाहिए, है ना। सो देखो, अभी आपको नंबर्स पे इतना ज्यादा फोकस मत करो कि मेरे 65 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, बिकॉज वट एवर दिस इज नंबर, ये नंबर आपको एग्जाम के दिन नहीं आने वाला है। जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि भाई एज इट इज क्वेश्चंस उस दिन आने वाला है। बेसिकली यू हैव टू लर्न, है ना। सो बेसिकली जो हमारा मॉक टेस्ट होता है, दैट इज फॉर लर्निंग पर्पस, है ना। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। क्या लर्न करना है कि आपने मॉक टेस्ट दिया, सो बेसिकली आपको एक टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। सेकेंड थिंग कि वट एवर मिस्टेक्स यू आर डूइंग, आप उसको जब एनालाइज करोगे, यू गेट एन आइडिया कि मैं क्यों मिस्टेक्स कर रही हूँ, कहाँ पे मेरा मिस्टेक्स हो रहा है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट, एंड आप उस पर वर्क करोगे। सो ऑन द डे ऑफ एग्जाम, बेसिकली हम जो भी ये तामझाम कर रहे हैं, जो भी हम इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर व्हाट, for of course on the day of exam, so that on the day of exam हम बेस्ट से बेस्ट दे, एंड of course हमारा रैंक अच्छा आएगा, राइट। सो फॉर दैट जो आप मॉक टेस्ट देते हो, उससे आपको सीखना है कि जो जो आप छोड़ रहे हो, है ना, जो आप लेफ्ट क्वेश्चंस है, जो आप नहीं कर, जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे, जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस है, उसको फाइंड करो कि वो आपने क्यों छोड़ा है। सेकेंड थिंग कि आपने जो क्वेश्चंस गलत किए हैं, सो यू हैव टू फाइंड द रीजन व्हाई यू इनकरेक्ट दैट क्वेश्चंस, है ना। सो उस पर वर्क करना है। सो ये बेसिकली आपको सीखना है, उस पर फोकस करो, नंबर्स पे प्लीज फोकस मत करो। अगर आप नंबर्स पर फोकस करते रहोगे एंड नंबर्स के कम आने की वजह से आप डिस्ट्रेस हो जाओगे, सो देयर इज नो एनी लाइक आई कैन से एनीथिंग कि आप फिर उसमें ही वो फंस जाओगे, उसमें ही स्टक हो जाओगे कि यार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। आपको मार्क्स कम आने पे आपको दुखी नहीं होना है। मार्क्स कम आने पे दुखी उस दिन होना होता है, एग्जाम के दिन होना होता है, जो एक्चुअल एग्जाम है ना। सो अभी आप मार्क्स के कम आने पे दुखी मत हो। अभी आप बेसिकली फोकस करो कि ये गलती क्यों हो रही है, गलती को पकड़ो, गलती को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। अब गलती जीरो भी नहीं हो जाएगा, गलती को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। आपका जो फ्रीक्वेंसी है कि लाइक 30 सेकेंड और 40 सेकेंड में आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, वो आपको कम करना है कि लाइक सपोज आप 1 मिनट में क्वेश्चन करते हो, उसको मिनिमाइज करके आप 50 सेकेंड करो, 55 सेकेंड करो। सो ये सारी चीजें ना बेसिकली आपको मॉक टेस्ट से, एमसीक्यू प्रैक्टिस से सीखना होता है, ठीक है ना। सो इट्स नॉट कि आपको दुखी होना है, डिस्ट्रेस होना है, नो। ओके, सो ऑल द बेस्ट, एंड जस्ट आई इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू से, जस्ट लगे रहो, जमे रहो, सब हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट।